Good morning, class. गुड मॉर्निंग सर। चलिए भैया आज ट्रीज स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्या डिस्कस कर रहे थे, कोई रिमाइंड कराएगा मुझे? बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। एसटी। ओके बेटा। तो हमने ट्रीज की बेसिक प्रॉपर्टी, लीफ, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, ये डिस्कस कर लिया था। लेबल डिस्कस कर लिया था, जो टर्मिनोलॉजी होती है। नो। नहीं डिस्कस किया था। चलें ठीक है भैया, है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंटेशन। ओके, डिड वी डिस्कस बाइनरी ट्री? Yes, sir. Okay. Okay. So we'll go with this. First, we'll discuss the properties, then we'll go with this binary tree and then binary search tree, and we'll try to cover up the insert and search algorithm. Okay. So we are going to discuss trees. Okay. In trees, for example, what we'll use. Okay. One more thing. I haven't shared my screen. Okay. We'll check the chat window again. ओके सर। Okay, Rishabh. चलें, we'll start with trees and we'll discuss the basic terminology. Like, as you all know, we'll represent tree. We can implement tree using array, okay, and linked list. Okay, we always prefer linked list structure. Okay, we'll do all the implementation using linked list. For array, we can go with binary tree. Okay, for binary tree, we can see the array implementation. Okay, and that too more complete binary tree. Okay, for this we can go with array implementation, rest will go with linked list. Okay, so let's start with this, how to represent, how graphically we'll represent a tree is an hierarchical data structure, as we all know. So it's an hierarchical, okay, and as well as it's a non-linear. Okay, so non-linear and hierarchical, I have to correct this spelling. Okay, can anyone guide me? Hierarchical, spell for hierarchical. Can anyone? Like there are 54, more than 50, 54 participants. Can anyone? No one can guide me for this, please. CHAL. Like that I have written. So Sir, मैसेज किया है. okay. Thank you. No issues. CHICAL. Okay, hierarchical structure, non-linear and hierarchical. Okay, as of now हमने अभी तक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। लीनियर, जिसमें लीनियर सीक्वेंस या तो नोड के कनेक्शन से मिल रहा था या एरे के कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेशन से मिल रहा था। अब हमें नॉन लीनियर मिलेगा। नाउ फ्रॉम एवरी नोड वी हैव मोर देन टू पाथ्स टू ट्रेवर्स, मोर देन टू वेज टू गो। ओके, चलें देखिए, हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं बाय forming a circle and writing the data value in it. Okay, writing and data value in it, और हम इसको बोलते हैं node. What we'll say node. Okay, because we are using the terminology, we are using the linked list implementation. Now from each node you have multiple paths. Okay, see, from A you can either go to B or to C or to D. Okay, this is a general tree. This is a general tree. General tree means there are more than one paths available. More than means after every node you can traverse in more than. There in general tree there presents an path. Okay, I can say Z over here and I will write N over here. Okay, Zn means
if I'll say B1, C1, D1, then Zn means that the n number of paths are available. I do not know the how many paths are available from this particular node A, this particular node A. Okay. The secondly, the same thing applies on B also. The same thing applies on B also. Okay. From here also, you can have multiple paths. Okay. I can say E, F, G, and I can again say Zn. Okay. That particular Zn over here on the on this particular place, and this both are the different data. Both are the different data. Class, give me a second. Okay, guys. So now now I hope you'll understand this thing. One more thing I want to add over here. Tree is a recursive data structure also. Tree is a recursive data structure also. See. Okay. How tree is a recursive data structure? You can move to this particular subtree. A tree with a single node is also called tree. A tree with a single node is also called tree. Okay. And with no nodes is also called known as tree, but you can say it's an empty tree. So now you have subtree 1, I can name it subtree 2, then subtree 3, and I can say subtree n. Okay. Now with this B, you can say you have again subtree 1 for this B, then same subtree 2, then subtree 3, and then subtree n. Okay. So in this way, like this A is acting as a root for this complete structure. This complete structure A is acting as a root. For this particular subtree 1, B is acting as a root. B is acting as a root. Okay. Is this clear? It's a recursive data structure. It's a recursive data structure. In general form, also it's a recursive. In general form, also it's a recursive data structure. In non-general form, also it's a recursive data structure. Okay. Let's move forward. Let's move forward. We do not spend much time on general tree. Now we'll move to binary tree. Now we'll move to binary tree. And now we'll discuss the terminology. For example, you all know a binary tree can have 0, 1, or 2 children at max. Okay. Means किसी भी नोट के 0 चाइल्ड हो सकते हैं, 1 चाइल्ड हो सकता है, या एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. तो बाइनरी ट्री के केस में हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एंड किसी पर्टिकुलर नोड का एक ही चाइल्ड हो ये भी पॉसिबल है. ओके. किसी पर्टिकुलर नोड का एक ही चाइल्ड हो ये भी पॉसिबल है. नाउ विल डिस्कस द टर्मिनोलॉजी. तो भैया जो हमारा हमेशा पहला नोड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूट. क्या बोलेंगे? रूट. ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है. ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं है. ओके. डन.
ऐसे नोड जिनका कोई चिल्ड्रन नहीं है उनको हम बोलेंगे लीफ नोड। क्या बोलेंगे भैया? लीफ नोड। ऐसे नोड जिनका पेरेंट भी है और चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है, चाइल्ड भी है और पेरेंट भी है, उनको हम बोलेंगे इंटरनल नोड। अब ये इंटरनल नोड की टर्मिनोलॉजी के कारण हमें जो लीफ नोड है हम उनको एक और नाम दे सकते हैं, एक्सटर्नल नोड। ठीक है भैया? ओके, now there's one more thing in tree, there's one more thing is in tree, that is labels, that is labels। तो भैया जो रूट होता है, जो रूट होता है वो होता है लेवल 0 पे, ठीक है। उसके बाद जो भी चाइल्ड होते हैं, रूट के जो भी चाइल्ड होते हैं वो होते हैं क्या भैया? वो क्या होते हैं? वो होते हैं लेवल 1। इन रूट के चाइल्ड्स के जो भी चिल्ड्रन होते हैं, रूट के चिल्ड्रन के जो भी चिल्ड्रन होते हैं वो अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम हिरारिकी में जैसे जैसे डाउन स्टेयर्स जाते जाएंगे, जैसे जैसे बॉटम डाउन जाते जाएंगे, हमें क्या बढ़ते जाएगा? लेवल्स बढ़ते जाएगा, लेवल्स बढ़ते जाएगा। एंड दिस लेवल इज नॉन एज डेप्थ, डेप्थ ऑफ नोड, ठीक है। जैसे डी ई एफ की डेप्थ क्या है बेटा? 2। डी ई एफ की डेप्थ क्या है? 2। ओके। बी और सी की क्या है डेप्थ? 1। रूट की डेप्थ क्या है? 0। रूट की डेप्थ क्या है? 0। नाउ from here we can derive one more terminology, that is known as, I can change a darker color, we can that is known as height of tree, okay। so height क्या है भैया? height of tree क्या है? from root the farthest, I can say from root the deepest node, ठीक है भैया। रूट से जो डीपेस्ट नोड होगा वो कंप्लीट ट्री की हाइट होगा, ठीक है। सो हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई भैया? हाइट ऑफ ट्री क्या हो गई? अभी करंट सिनारियो में सबसे दूर वाले नोड कौन से हैं? डी ई एफ। तो हाइट ऑफ ट्री अभी क्या है भैया? 2। हाइट ऑफ ट्री क्या है? 2। ये देखो, इसको पता करने का तरीका मैं बता देता हूँ ना, इसको आसान तरीके से पता करने का तरीका ये है, आपने रूट से ट्रेवर्सल स्टार्ट करो और जितनी ये जो कनेक्शन है ना, इनको और टर्मिनोलॉजी दे देता हूँ, पहले इनको और नाम दे देता हूँ भैया। ये जो कनेक्शन होता है दो नोडों के बीच में, इसको हम बोल देते हैं एज, ठीक है। क्या बोल देते हैं? एज, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं? हाइट निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? रूट से ट्रेवर्स करो और एज काउंट कर लो। देखो एज ये 1 है, ये 2 है, तो हाइट अभी 2 दिख रही है, लेकिन इस तरफ भी देखना पड़ेगा। 1 2 1 2, तो अभी हमको हाइट क्या मिल रही है? 2। अभी हमको हाइट क्या मिल रही है? 2। हाइट ऑफ ट्री क्या मिल रही है? 2। ओके, इज दिस क्लियर? चलें चैट विंडो पे जाता हूँ, चैट विंडो पे कोई मैसेज आया है। नहीं भैया, अगर अगर किसी ट्री में इफ एनी ट्री कंटेनिंग वन नोड रूट नोड ओनली, ठीक है, वन नोड रूट नोड ओनली, तो उसकी हाइट क्या है? 0। उसकी हाइट क्या है? 0। समझ गए भैया? जिसने डाउट पूछा था उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, कि वो रहेगी 0। ओके, इज दिस क्लियर? चलें एक और बार मैं ट्री ड्रॉ कर रहा हूं, आप मुझे हाइट बताइएगा इस वाले ट्री की, ठीक है। I'll say I over here. What will be the height of this tree? 4. 4 सिंपल सी बात है, 0 1 2 4. 3 4, ठीक है। समझ गए भैया? हाइट ऑफ ट्री क्या है? लेवल, डीपेस्ट लेवल,
ओके ओके डीपेस्ट लेवल। देखो बेटा, या तो एजेस काउंट कर लो या लेवल्स बना लो। 1 2 3 4, क्या हो गई हाइट? 4। ओके अब देखिए, मैंने कहा था ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर। ट्री इज अ रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, याद है मैंने बोला था ऐसा, है ना? चलो अब मुझे आप बताना हाइट ऑफ ईच नोड, है ना? हम हर नोड की हाइट लिख देंगे। इसकी हाइट हो गई 4। बी की हाइट बताओ, बी की हाइट, 1 है ना? 1 बाय बी से सबसे दूर, बी रूट बन गया, सब ट्री है तो बी रूट बन गया। बी की हाइट सर क्या है? वॉइस नहीं आ रही है। ओके ओके, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या भैया? यस सर आ रही है। यस सर। ना, हो सकता है मेरा, मैं आई नीड टू अपडेट माय माइक्रोफोन। ओके, आई नीड टू अपडेट माय माइक्रोफोन। मैं आज ही के आज अपडेट कर दूं, है ना? ठीक है, आई विल परचेस अ न्यू माइक्रोफोन फ्रॉम दैट कैंटीन शॉप। अगर वो माइक्रोफोन वाला बंदा आया होगा, आई विल अपडेट माय माइक्रोफोन। ऐसा मुझे 2 दिन से लग रहा है कि मेरा माइक्रोफोन लाइक हेडफोन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इफ आई डू नॉट यूज दी हेडफोन, आपको मेरी आवाज तो आएगी पर आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी, ना? आपको मालूम है मेरे लैपटॉप में आवाज नहीं आती। चले, नो इशूज। हाँ, ट्री रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है तो मुझे हर नोड की हाइट मालूम होनी चाहिए। चले बताए, पी की हाइट क्या है? 2 2 डेप्थ 2 है, हाइट 0 है। पी के नीचे कुछ नहीं है भैया, जी सर, ओके। पी यस के यस नीचे कुछ सर। नहीं है, ना? एज काउंट करनी है, एज नहीं है। सी की हाइट बताएं मुझे। 1 3 देखो, सी से मैं 2 3 डायरेक्शन सर। में जा सकता हूँ। 1 1 1, दोनों एक एक एज है। ये डेप्थ पे गया, सी के बाद यहाँ गया 2 और यहाँ गया 3 भैया। ठीक है, समझ गए? तो सी की हाइट क्या होगी? अब 3 देखो, max of the height of left and right subtree, max of the height of 1 plus max of the 1 plus max of left subtree की height, है ना? max of left subtree height and right subtree height। ठीक है भैया, थोड़ा सा गलत लिख दिया, कुछ भी चलता है लेकिन, है ना? ठीक है, दोनों में से मैक्स जो होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, रिकर्सिव है इसलिए नीचे से काम भी चालू कर सकते हैं। अब देखो, सी की हाइट 3 क्यों बोली मैंने? क्योंकि सी के बाद डीपेस्ट नोड आई है, सी के बाद डीपेस्ट नोड आई है और मैंने काउंट करना चालू किया तो 1 2 3 मिला मुझे, तो सी की हाइट हो गई भैया 3। अब ई की कोई हाइट बताए मुझे। 2 2। 2 एफ की हाइट बताए। 0 0 ओके, जी की कोई हाइट बताए। 1 1 1। आई की कोई हाइट बताए। 0 0 0 ठीक है, मीन्स ऑन पेन एंड पेपर नाउ यू आर कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग द हाइट। ऑन पेन एंड पेपर नाउ यू आर कंफर्टेबल इन कैलकुलेटिंग हाइट ऑफ ईच नोड, हाइट ऑफ ईच नोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यस सर। सब ट्री मार्क करूंगा, है ना? आप लोग मुझे गाइड करें कितने सब ट्री हैं मेरे पास। ठीक है, आप लोग मुझे गाइड करें कितने सब ट्री हैं। ए के लिए 2 सब ट्री हैं भैया, है ना? ए के लिए 2 सब ट्री हैं। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री ए का, ए के केस में, और ये दूसरा जो मार्क कर रहा हूँ डॉटेड लाइन से, थोड़ी सी छोटी डॉटेड लाइन है, जो मोबाइल पे यूज कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा विजिबिलिटी कम होगी। ओके, ये हो गया मेरा राइट सब ट्री। ओके, आर एस टी एल एस टी। ओके, आर एस टी एल एस टी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, मैंने अभी बनाई है ना? तो राइट सब ट्री या लेफ्ट सब ट्री बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन नहीं बोल सकते हो, मैंने अपनी आसानी के लिए बोल दिया है। ठीक है, चलें, ये बन गए। अगले और आगे आप लोग गाइड करें। चलें, बी पे जाते हैं तो कितने सब ट्री हैं? 1 LST 1 हाँ जी, बी 1 बी का एक ही सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री। बी का बोल सकते हो कि राइट सब ट्री भी है, लेकिन वो क्या है? null एम्प्टी। यस, नल या एम्प्टी। ओके, नल या एम्प्टी, इज दिस ओके? बी का राइट सब ट्री एम्प्टी है, बी का राइट सब ट्री एम्प्टी है। चलें, अब सी के लिए बात करते हैं। अब सी के लिए बात करते हैं, सी के लिए बात करते हैं भैया। सी के क्या हैं? 2 सब ट्री हैं, 2 सब है ना? 2 ई और सी। है ना? ठीक है, ई और एफ दोनों सब ट्री हैं। एक सब ट्री का रूट एफ है, एक सब ट्री का रूट क्या हो गया? ई हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ई के लिए। ई के लिए एक ही सब ट्री है, दूसरा क्या है? एम टी। और एफ की बात करने तो उसके दोनों सब ट्री क्या हैं? एम टी। empty ओके, जी सर की बात करें, आप समझ गए सब ट्री आइडेंटिफाई करना?
सर हाँ Yes. जी, बोले बोले बेटा। सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब जैसे ई का सी पे मतलब एक है, सी से ई और ई से सी। अब जैसे एफ एम पी है और आई एम पी इसको काउंट भी तो नहीं कर सकते ना हम? नहीं, इनको काउंट नहीं करेंगे एमटी वालों को, लेकिन आप बोल हाँ सकते हो कि बी का जो राइट सब ट्री है या ई का जो राइट सब ट्री है वो एमटी है। आप काउंट तो हाँ नहीं करेंगे उसको, भाई, तो वैसे टू है ना। दिख रहे हैं इसमें। हाँ जी। हाँ, कोई नहीं सर। मैंने बोला यहाँ पे कि एमटी है ये, है ना। इनके सब ट्री एमटी है, मतलब है नहीं, एमटी ट्री को काउंट कैसे करोगे? इफ एनीथिंग इज एमटी आई कैन नॉट काउंट दैट थिंग ना। जी और सर। काउंट कर भी लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो है वो, है ना। हम्म। ठीक है। यस ओके, सर। तो आप सब ट्री आइडेंटिफाई करना समझ गए ना, सब ट्री आइडेंटिफाई करना समझ गए। ठीक है। ऋतिक, ऋतिक, मैं तुमने जो लिख के भेजा है वो मैं फॉर्मूले बेस्ड पे अभी नहीं जा रहा हूँ, है ना। फॉर्मूले बेस्ड पे जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है। ठीक है। एन नंबर ऑफ नोट्स से मैं हाइट नहीं निकाल सकता। ओके, ये फॉर्मूला किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक ट्री पे इम्प्लीमेंट होता है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऋतिक, है ना। हम इसको डिस्कस करेंगे, वैसे मैं फॉर्मूलेज में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, है ना। ठीक। दिस फॉर्मूलाज आर यूजफुल फॉर गेट प्रिपरेशन। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि फॉर्मूलेज याद नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। ओके, बट देयर इज एन स्ट्रिक्ट रूल। तुम जो बोल रहे हो वो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए अच्छा है ना। कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए अच्छा है, लेकिन तब भी मैं बोल नहीं सकता, है ना। फॉर्मूला इज इन रिवर्स, कि अगर आपको ट्री की हाइट मालूम है कंप्लीट बाइनरी ट्री की, तो आप नंबर ऑफ नोड्स किसी भी लेवल के बता सकते हो एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। ठीक है। ओके, चलें उसको डिस्कस करेंगे। आई डू नॉट इन्वॉल्व इन दैट। चलें, चलो। तो भैया सब ट्री आइडेंटिफाई करना आप समझ गए, आपको ये भी पता चल गया रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर होता है ट्री, तो सब ट्री कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड आपको हाइट निकालना पता चल गया, हर एक नोड की आप हाइट भी निकाल सकते हो, आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता चल गई है। कुछ और टर्मिनोलॉजी है ना, मैं पिछले पेज पे वापस जा रहा हूँ, कुछ और टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक पे आता हूँ। भैया जो नोड, जिन नोड का पेरेंट सेम होता है, जिन नोड का पेरेंट सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स, है ना, सिबलिंग्स। ठीक है। और जो नोड सेम लेवल पे होते हैं और पेरेंट अगर अलग है तो क्या बोलेंगे? तो भी बोलेंगे सिबलिंग्स, तो भी क्या बोलेंगे भैया? सिबलिंग। मतलब जो भी नोड सेम लेवल पे हैं वो क्या है? सिबलिंग्स हैं। वो क्या है? सिबलिंग्स हैं। ओके। किसी भी नोड के, किसी भी नोड के पहले वाले नोड को एंसेस्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंसेस्टर। यहाँ बी का एंसेस्टर कौन है? ए। ठीक है, बी का एंसेस्टर कौन है? ए। ए डी का एंसेस्टर बी एंड ए, बी। डी का एंसेस्टर बी एंड ए। ओके। क्या सी बी का एंसर डी का एंसेस्टर है? इस करंट जो पेज हमारे पास है उसके हिसाब से क्या सी डी का No. एंसेस्टर हो सकता है? नो सर। नहीं, No, sir. है ना, नहीं हो उल्टा सकता। होगा। ठीक है। ओके। तो ई के एंसेस्टर हैं सी एंड ए, एफ के एंसेस्टर हैं सी एंड ए। ए। तो आप एंसेस्टर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके पास कोई गिवन नोड है तो उसके सर एंसेस्टर एंसेस्टर क्या होता निकाल सकते हैं। हाँ, है? एंसेस्टर क्या होता है? किसी भी नोड का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट, या ग्रैंड 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 पेरेंट। हिरारकी में उसके ऊपर जो भी होगा, हिरारकी में उसके ऊपर जो भी होगा वो उसका एंसेस्टर है। उससे पहले जो भी आया होगा वो उसका एंसेस्टर है। हाँ सृजन, पूर्वज। ओके। ओके सर। ओके। ठीक है। चलें, तो सिबलिंग्स, एंसेस्टर, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता चल गई है। देखिए भैया, ये जो मैंने बनाया है ये बाइनरी ट्री जो है, बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के 0, 1 या 2 चाइल्ड हो सकते हैं। तो अभी हम सही चल रहे हैं कि भैया डी ई एफ के 0 चाइल्ड हैं, बी का 1 चाइल्ड है, सी और ए के 2 2 चाइल्ड हैं। ठीक है। ओके। चलें, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो गई भैया किसकी बात? बाइनरी ट्री की बात। अब क्रिएट करना कल सिखाया था क्या बाइनरी ट्री?
नो सर। बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करूं मैं, है ना? तो पहले तो एक सेट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं ना, सेट ऑफ वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है? सेट ऑफ वैल्यूज ले ली हमने, 10, 5, 800, 60, 40, 2. Now what I have to do, I have to create a binary tree, है ना? I have to create a binary tree. मुझे ये नहीं मालूम है कि इन वैल्यूज के बीच की रिलेशनशिप क्या है, हु इज अ पेरेंट, हु इज अ चाइल्ड, हु इज अ ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड पेरेंट, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये रिलेशनशिप मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो मैं कैसे ट्री क्रिएट करूं, मैं बाइनरी ट्री कैसे क्रिएट करूं? ओके, चले देखते हैं, चैट विंडो पे आया है। यस ऋषभ, चलो मैंने बता दिया था शायद लास्ट क्लास में, है ना? 2 दिन बाद क्लास लग रही है शायद सेक्शन एफ की। लास्ट क्लास कब लगी थी? मंडे, ट्यूसडे लगी थी, मतलब 1 दिन का गैप हो गया है। चलें ठीक है, मैंने आपको रूल्स बता दिए थे तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले लेवल कंप्लीट करो, है ना? एक रूल है लेवल कंप्लीट करो। दूसरा रूल है लेफ्ट इज नल, तो क्या बनेगा? लेफ्ट चाइल्ड। ओके, राइट इज नल, तो क्या बनेगा? राइट चाइल्ड। ठीक है, पहले हम हर बार लेफ्ट चेक करेंगे। और लास्ट लेवल पे क्या होने वाला है? लास्ट लेवल पे ऑल चिल्ड्रन मस्ट बी अलाइंड, मस्ट बी अलाइंड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए भैया? ट्री के लेफ्ट हैंड साइड। अब इन वैल्यूज के लिए अगर मुझे ट्री बनाना है तो क्या करूं? इन वैल्यूज के लिए मुझे ट्री बनाना है, व्हाट शुड आई डू? चलें, पहली वैल्यू तो रूट बन जाती है भैया, अगली वैल्यू आएगी वो लेफ्ट बनेगी, उसके बाद वाली वैल्यू आएगी राइट बनेगी। ये लेवल कंप्लीट हो चुका था, ये वाला लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब जो अगली वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? 60। अगली वैल्यू आई इसका राइट चाइल्ड बनी, क्योंकि 5 का लेफ्ट नहीं था तो राइट नहीं बन सकता, लेफ्ट ही पहले बनेगा। ओके, देन कौन सी वैल्यू आई? 2। आप देख रहे हैं आखिरी लेवल पे सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड अलाइंड है। ठीक भैया, इसके अलावा अगर मैं क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे हायरार्की मालूम होनी चाहिए कि कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है। ओके यस सर। बेटा, इस तरीके से जब भी बनाओगे तो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगा। क्या बनेगा? कंप्लीट बाइनरी ट्री। और वो हमेशा बैलेंस रहेगा, वो हमेशा बैलेंस रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। ओके, चलें, तो ये हो गया क्रिएटिंग अ बाइनरी ट्री। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो मैंने क्रिएटिंग अ बाइनरी सर्च ट्री भी बता दिया होगा। चलें पहले बाइनरी सर्च ट्री बात कर लेते हैं। बाइनरी सर्च ट्री, देखिए मैक्सिमम हम बाइनरी सर्च ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि भैया ये सर्च इफिशियंसी देता है। ठीक है, सर्च इफिशियंसी का मतलब सर्च करने, हाँ, किसी एरे को सर्च करना है, किसी एरे को सर्च करना है तो आपके पास 2 टेक्निक है सर्च करने की, लीनियर या बाइनरी। बाइनरी की लिमिटेशन क्या है बाइनरी सर्च की? अभी तक आपको मालूम नहीं होगी क्योंकि पढ़ा तो हमने है नहीं। तो बाइनरी सर्च की लिमिटेशन है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो वो सॉर्टेड होना चाहिए, जो भी डेटा स्ट्रक्चर हो वो क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। ठीक है, ओके, चलें भैया। तो सर्च इफिशियंसी क्या है ना? लो कॉम्प्लेक्सिटी मिले सर्च करने में, लो कॉम्प्लेक्सिटी मिले सर्च करने में। तो बाइनरी सर्च ट्री में लो कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है log ऑफ n। क्या मिलती है भैया? O ऑफ log n। क्या मिलती है? O ऑफ log n। ठीक है, अच्छा मैंने क्या आपके सेक्शन में ऐसा कोई वर्बली नोटिस दिया था कि अगर आपको आपके मार्क्स में कोई डाउट है कि सर मेरे मार्क्स मुझे कम लग रहे हैं, इतने कम नहीं आने चाहिए थे?
नहीं सर। नहीं दिया है, चलिए अभी लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम हैं, है ना, यस सर। पर्सनल वॉइस नहीं आ व्हाट्सएप रही करें। आपकी। पर्सनल वॉइस आवाज नहीं आ रही सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं धीरे बोलने लगता हूँ तो मेरा माइक्रोफोन रिस्पॉन्स नहीं करता है। मैंने आपको नोटिस नहीं दिया था कि आपके मार्क्स, देखिए आप डे स्कॉलर हैं, आप कॉलेज के अंदर आके अपनी कॉपी नहीं देख सकते। हमने जो हॉस्टलर्स हैं उनको कॉपीज दिखा दी है, ठीक है, ओके, और उन्होंने अपनी कॉपी देखी और अब आप उनको जो भी परेशानी लगी वो परेशानी अब हमसे डिस्कस कर ली। अब आप अपनी आंसर शीट तो देख नहीं सकते क्योंकि आप कॉलेज के अंदर आ नहीं सकते और हम आंसर शीट बाहर लाके आपको दिखा नहीं सकते। ओके, दैट इज द लिमिटेशन। इतना क्लियर है भैया? अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम आए हैं तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, जिसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, अपना क्लास रोल नंबर, अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख दीजिएगा और एक रिक्वेस्ट लिख दीजिएगा कि सर काइंडली रिव्यू माय आंसर शीट, आई फाउंड माय मार्क्स आर लो एंड प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट माय मिस्टेक्स सो आई कैन टेक केयर ऑफ दैट नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है भैया, समझ गए ओके सब? ओके सर। ना, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप लेक्चर के बाद भेज देना, तो आज शाम में जब रिव्यू कमेटी बैठेगी तो जितने भी बच्चों को, देखो अगर सारी क्लास नहीं भेज दिया है तो दैट इज नॉट फेयर टू मी, ओके, बट स्टिल आई ट्राई टू गो थ्रू योर कॉपीज। ओके, यस सर। ओके, ठीक है भैया, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई है तो मैं आपकी कॉपी को गो थ्रू नहीं करूंगा। ओके, ओके सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नंबर कम है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं भैया, ठीक है, तो मैं आपकी कॉपी देख लूंगा क्योंकि आप खुद तो देख नहीं पा रहे हो सकता है कि मेरे ही एंड से टोटलिंग मिस्टेक हो गई हो, मैंने इवेल्युएट की और टोटलिंग मिस्टेक कर दी हो। यस। ठीक, कोशिश की है कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपको हक बनता है जानने का। जितने लोग मुझे रिव्यू की रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं कोशिश करूंगा कि एक पेन एंड पेपर पे जब रिव्यू करूं तो उनके क्या क्या कारण हैं ये लिख लूं, है ना, ठीक है, ओके। और अगर टोटलिंग मिस्टेक है या मैंने चेक किया और मैंने रॉन्गली इवेल्युएट कर दिया है कोई क्वेश्चन की भैया ये क्वेश्चन तो मेरे से, तब चेक करते वक्त मैंने सारे डायमेंशन इसके चेक नहीं किए कोड के, है ना, तो अगर कुछ गलती हुई है तो उसका सुधार मैं कर सकता हूँ, लेकिन नॉट विदाउट योर रिक्वेस्ट। ओके, ठीक, तो आप मेरे को जो पर्सनल व्हाट्सएप भेज देना मैं चेक कर लूंगा, लेकिन 3-4 चीजें जो बताइए, नाम, क्लास रोल नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, एज वेल एज दैट रिक्वेस्ट फॉर रीवैल्यूएशन की आपको क्यों लगता है, ठीक। चलें अब अपन कंटिन्यू करते हैं। एज पर दी नोटिस, जो हमने, जो जनरल नोटिस है कि हॉस्टलर्स को तो परमिशन है, डे स्कॉलर्स के लिए ऑनलाइन सेशन चल रहा है तो वो ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि डे स्कॉलर डेली कम्यूट करेगा तो वो चीज़ है, हॉस्टलर एक बार कम्यूट करके आएंगे उसके बाद जो रहेंगे वो आइसोलेशन में रहेंगे, तो बेहतर है आइसोलेशन, मतलब इनसाइड कैंपस एंड आउटसाइड कैंपस आइसोलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जीडी करा सकते हैं, जिसके ऊपर तो अपन जीडी नहीं करते हैं, अपन अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेज देना, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गो थ्रू योर आंसर स्क्रिप्ट। इफ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि कोई भी चीज़ रॉन्गली एवेल्युएट हुई है तो उसको करेक्टली एवेल्युएट कर दें, और नहीं हो पाई कमेंट, 2 लोग बैठेंगे ना, ठीक है, नीरज खन्ना सर और मैं बैठेंगे, जो जो रिक्वेस्ट देगा कॉपी को रीचेक करेंगे। इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच आई फाउंड रॉन्गली इवेल्युएट मैं उनको बताऊंगा सर क्या कंसीडरेशन कर सकते हैं इस चीज के लिए, जो वो डिसीजन लेंगे वो है, बिकॉज आई एम अ क्लास टीचर, आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन ऑन दैट थिंग। ओके, सो जैसे सेम सेम अप्लाइज ऑन नीरज सर की, वो क्लास टीचर जहाँ पे हैं वहाँ पे वो एक्शन नहीं ले सकते, तो आई हैव टू टेक द डिसीजन। ओके, चलें अपन कंटिन्यू करते हैं भैया। सर्च इफिशियंसी लो कॉम्प्लेक्सिटी देती है भैया, लो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है भैया। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या करता है? बाइनरी सर्च ट्री भैया देखो, एक तो बाइनरी है, तो किसी भी नोट के क्या हो सकते हैं, 0, 1 और 2 चिल्ड्रन
मैक्स। एक बात तो बाइनरी से आ गई है ना, ठीक है। अब ये सर्च ट्री है तो इसका अपना रूल है, ये सर्च ट्री है तो इसका अपना रूल है। एनी वैल्यू lesser than root will be placed in लेफ्ट सब ट्री। ठीक है भैया, मतलब जो भी वैल्यू रूट से लेसर देन है वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट सब ट्री में। एनी वैल्यू ग्रेटर देन रूट वैल्यू लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। रूट की वैल्यू से ग्रेटर देन है तो वो कहाँ जाएगी भैया, प्लेस्ड इन राइट सब ट्री। ठीक है भैया, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, फिर से बता दे रहा हूँ। अच्छा बेटा, डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्या करेंगे हम? सर कुछ नहीं होगा, डिस्कार्ड रिजेक्ट कर देंगे ना, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, बट स्टिल, हाँ जी रिजेक्ट कर देंगे, बट स्टिल स्टिल इफ आई वांट टू कीप डुप्लीकेट, स्टिल इफ आई वांट टू कीप डुप्लीकेट वैल्यूज तो क्या करें? लेफ्ट साइड हाँ जी, है ना, लेफ्ट सब ट्री ओनली। समझ गए भैया? अगर मुझे डिस्कार्ड करनी है तो वो लेफ्ट सब ट्री में ही जाएगी, डिस्कार्ड नहीं करनी है और कीप करनी है तो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही जाएगी। ठीक है, ओके चलें। आई होप सो कि हम सिर्फ इंसर्ट के लिए कोड लिख पाए, हम इंसर्ट के लिए कोड लिख पाए, है ना। तो देखो बेटा, मुझे क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। मैं किस अप्रोच से बना रहा हूँ, लिंक्ड लिस्ट। किस अप्रोच से बना रहा हूँ, लिंक्ड लिस्ट से। किससे बना रहा हूँ भैया, लिंक्ड लिस्ट से। तो मुझे पहले बनानी पड़ेगी नोड क्लास, जिसको मैं बोल सकता हूँ ट्री नोड क्लास ऑल्सो। क्या बोल सकता हूँ भैया, ट्री नोड क्लास। नोड क्लास के पास क्या क्या होगा, एक तो डेटा होगा, दूसरा होगा लेफ्ट चाइल्ड, तीसरा क्या होगा, राइट चाइल्ड। इज एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। है ना। तो नोड के पास होगा लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और डेटा। ठीक है भैया, ठीक। प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो क्या होगा, टाइम चला जाएगा थोड़ा सा। चलें, यहीं पे इंसर्ट का कोड यहीं नहीं लिखते हैं, जल्दी से एक प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजे चल तो रहा है लेकिन कल से चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम दे सकता है। प्रोजेक्ट नेम 2F बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है भैया, फिनिश। ओके चलें, बाइनरी सर्च ट्री हो गया है, प्रोजेक्ट बन गया है। एसआरसी में जाते हैं, सबसे पहले नोड क्लास बना लेते हैं ना, सबसे पहले नोड क्लास बना लेते हैं। ठीक है, चलें। दिस इज द प्रॉब्लम समटाइम्स। अरे भैया हाँ ठीक है, कैंसिल हो जाओ तुम, बेहतर है, वॉट एवर, कैंसिल हो जाओ। चलें भैया, नोड क्लास को हम इम्प्लीमेंटेशन में डाल देंगे भैया ना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डॉट नोड। नोड के अंदर हमने आपसे क्या बोला बेटा, कि एक तो होगा इंट डेटा। ठीक है, टाइम कम है नहीं तो इसको जेनरिक अप्रोच भी समझा देता आपको, इसकी जेनरिक अप्रोच भी समझा देता। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक आपकी चॉइस है। ठीक है, प्राइवेट नोड लेफ्ट, मैं लेफ्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट से लेफ्ट चाइल्ड डिनोट होगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सर अगर हम ये नोड क्लास प्रोटेक्टेड बनाएंगे तो क्या होगा? प्रोटेक्टेड बनाओगे तो इसको नेस्टेड बनाना पड़ेगा बेटा, फिर मतलब सर, इनहेरिटेंस के बाद ही एक्सेसिबल होंगी ये सारी वैल्यू। सर जहाँ पे ये बाइनरी सर्च ट्री की वो जो क्लास बनाएंगे उसकी के अंदर बनाना पड़ेगा उसके हमें? अंदर आप प्राइवेट स्टैटिक क्लास बना लो, बेहतर रहेगा। पर बेटा इस नोड क्लास की जरूरत पड़ेगी आपको इस स्ट्रक्चर के बाहर, है ना। ठीक है, ओके सर।
इस नोड क्लास की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे वो रिकर्सिव वाला कोड हमने भेजा था, याद होगा, मेन मेथड से कॉल करना था, और नोड क्लास अगर प्राइवेट स्टैटिक होती तो वो कोई काम की नहीं रह जाती, इनर क्लास होती तो, यस यस है ना। अब तो ये जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि मेरा इंटेलिजे हैंग हुआ है किसी कारण से, मतलब मेरा सिस्टम 100% डिस्क यूजेस पे चला गया है, ठीक। तो ये कोड हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑन मंडे, है ना, दैट इज ऑन मंडे, ठीक है भैया, ओके। चलें, हमारे पास है 3 मिनट, मैं 3 मिनट ड्रैग नहीं करता हूँ चीज़ों को, मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे कोड को एरर प्रोन होने से बचा लेता हूँ, ओके। इतना करके मैं छोड़ दे रहा हूँ भैया, है ना। नोट क्लास पे हम रुक जा रहे हैं। आई एम एंडिंग दिस सेशन, विल मीट यू ऑन मंडे। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।